Hope you guys are doing well. We'll be starting around 3-4 minutes. Hope you guys are doing good. Happy New Year. The first episode of many more to come this year. This the name is Talk with the Expert, and today we are having a very special person. We start this new year. We should start off with a new thing and new positivity in life. So we have a special person who is spreading a lot of positivity for over 6-7 years, and he is part of a huge campaigning group in India, and very soon he will be with us. So we have questions from all of you, and I have compiled it, and I hope expert will try and answer all of it. So within few, I think he will be with us. Evening. Good evening. Hear me? Yes, I can hear you. We all start off. I wanted to give you a. He have a super profile, but I have cut down short and with give a brief description about today's expert. He's Mr. B.K. Hitesh from Raj Yoga and Raj at Brahma Kumari Spiritual University. He is a meditation teacher and expert in spirituality. He is currently serving at Brahma Kumari's headquarters, Mount Abu. He has expert in conducting workshop on different topics for everyone across India and in abroad. He is in a part of Mera Bharat, Swarnim Bharat, and he's been campaigning uh, for last 3 years to spread awareness about the spirituality and meditation under the youth wing under Brahma Kumaris. So welcome, Hitesh, to our show, Talk with the Expert. This is the first episode of it. We have gone through a lot of situations over past year, and it's been really terrific for a lot of people. So I just want you to start off with giving something a good spiritual start for this year. Welcome, Hitesh, and over to you. Thank you. Thank you, Gopal. Thank you so much. And I feel really privileged, pretty fortunate, and grateful that I have been given this opportunity because sports has been always been close to me and still an integral part of my life. Badminton is my favorite sport, and I play it almost regularly. So it's an honor to talk to players, to talk to you, so that the thing which we all have been through, and uh, s- mm, the players are, no more exceptions. They have been through a lot of things, the things which we have planned in our life, in our normal life also. वो चीज हो ही नहीं है, कुछ ना कुछ obstacles आए हैं, and it has been very abrupt. We were not ready for it, right? So thank you so much for giving this opportunity, and जो आप And yeah, to have you on GD Squash out here.
सो जैसे मेरी आपसे बात भी हो रही थी, दैट यस, होता क्या है कि ये जो चीज जो भी हुई है फ्रॉम द लास्ट 1 year, वी हैव नॉट बीन एबल टू डू थिंग्स which we plan to do, right? And it has caused distress in many people's life. But having said that, अगर हम अपनी लाइफ को फिर भी देखें, that still I'm able to do many things. We all, whoever is listening, I'm sure you all agree to it that we come in the privilege category. कि हमारे पास जो कुछ है, जो challenges हमने देखे हैं, few people, many people, millions of the people, उन्होंने जो देखा है वो हम सोच भी नहीं सकते, राइट? इस पेंडेमिक की वजह से। So it's a privilege, as you said, correct, that we have this thing with us. Yes, and I always say this, that the life we all are living, I say it to myself and I say it to others also, that the life I am living is a dream of millions. So always, always, always be satisfied with life. Of course, जो हमने करना है, जो हमारा पैशन है, वो हमें करना है, बट सैड होना, डेस्परेट होना, that is not going to give us the power and right mindset so that we can perform under the pressure situation, stress situation. Because a peaceful mind हमेशा हमें आइडियाज देगा, क्रिएटिविटी देगा, और कुछ ना कुछ सिग्नल्स मिलेंगे दैट ओके, ये नहीं करना है, ये करना है, दैट स्ट्रीट स्मार्टनेस जो लाइफ में चाहिए होती है, जो स्पोर्ट्स में चाहिए। तो इसलिए राइट, तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है, दैट पहले ही ये चीज समझना दैट वट एवर आई एम डूइंग इज अ ड्रीम। ये जो लाइफ में हमें मिली है, जो हम कर पा रहे हैं, इवन इफ आई हैव अ फिट बॉडी, इफ आई हैव अ ड्रिंकिंग वाटर, if I have few friends with whom I can share few things, if I have parents, if I have simple things like food, like roof, ये ऐसी चीजें हैं जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो हम सोचते हैं ये तो, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो होता ही है, सबके पास होता है। नहीं, सबके पास नहीं होता है। जब हम घर से निकलते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें देखते हैं और वो ये सोचते हैं काश ऐसी लाइफ होती तो वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू। बट मैं अपनी गलती नहीं बोलूंगा, हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई हुई है कि वी ऑलवेज लुक फॉर फ्लॉज। देयर इज अ टर्म फॉर इट, नेम एज मिसिंग टाइल सिंड्रोम, which means that if you enter a beautiful house, newly constructed house, बहुत सुंदर टाइल्स लगी हुई हैं, बट वन टाइल इज मिसिंग, तो सारा का सारा ध्यान कहाँ जाएगा? उस मिसिंग टाइल, राइट? ऐसे ही हमारी लाइफ में है कि हमारा माइंड हमेशा वो ढूंढेगा विच इज लैकिंग, इन अस, उस पे ध्यान नहीं देगा विच इज ऑलरेडी इन अबंडेंस विद इन अस। तो बस वही है कि धीरे धीरे प्रोग्रामिंग को शिफ्ट करना है, कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है। whatever I have is a dream, it's a gratitude, every day is a grateful day। तो ये हम अगर स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, तो ये जो चैलेंज हमें लगता है वो एक्चुअली में चैलेंज लगेगा। हमारा मन शांत होगा, देन विल लुक फॉर न्यू थिंग्स टू डू। क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत सी अच्छी चीजें इस समय में, इस पेंडेमिक में इनकलकेट की हैं, उस पर वर्कआउट किया है, जो चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग। आई वुड से दैट इफ वी फील दैट लाइफ इज blissful, it's a gratitude, we say thank you to God, thank you to life। तो जो चैलेंज है वो चैलेंज लगेंगे, छोटे हो जाएंगे। So I have a lot of questions from my lot of players across the country. But before I start, I have one question. We went through a very unexpected phase. A lot of people were physically and mentally disturbed with this pandemic. Means everybody thought that, okay, monetary gain, but nobody thought of this mental thing that people got more mentally disturbed
and which led to a lot of troubles, health problems, a lot of issues we know. How do you explain this? Once we start off this, because I wanted, this is my personal question, because I have been seeing a lot of people that we are not getting, but nobody talks about the mindset. How can we think to be more positive? What you had, you started off, but if you can explain it into more detail, that how means how mentally, physically and mentally disturbed we are always. How can we make it calm and move ahead? Good. I was just coming to it. See, the point is that uh, we do not have this habit of enjoying our own company, right? अगर हमें if even if I have to go to market, even if I have go to some place to roam around, even if I have to go for a walk, I need someone. हम किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं, उसे बोलते हैं चलो घूम कर आते हैं. Why? Because खुद से हमारी फ्रेंडशिप नहीं है. बहुत सुंदर एक कोट है that the problem with the humanity is we are not able to sit alone quietly in a room for 5 minutes. कुछ ना कुछ चाहिए, चाहिए. कुछ ना कुछ चाहिए. अब क्या चाहिए? फोन चाहिए, किसी को फोन करेंगे, अननेसेसरी कुछ बातों में जाएंगे, कुछ फिर गलत हैबिट्स डेवलप हो जाती है बिकॉज वी आर नॉट इंडिपेंडेंट. तो यही इस पेंडेमिक में हुआ. हमें बैठना समझ ही नहीं आया दैट we can enjoy our own company, we can still enjoy life with simple things. जिसे ये नहीं आया, उस वजह से स्ट्रेस क्रिएट हुआ, राइट? तो पहली चीज ये प्रैक्टिस अगर हम करें दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी माय वे, थोड़ा सा एक्सेप्ट करके चले. एक्सेप्टिंग द डे एंड एक्सेप्टिंग द लाइफ कि आज सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा एंड लाइफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगी. पीपल आर नॉट गोइंग टू बी माई वे, सिचुएशंस आर नॉट गोइंग टू बी माई वे. आई हैव टू एडजस्ट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट. जब ये हम अपने आप से बात करेंगे then we'll see that we have that power to enjoy even the critical situations in our life. तो बस सिंपल है that खुद की कंपनी को एंजॉय करना जब हम शुरू कर देते हैं, खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो ये जो चैलेंज है ये कुछ चैलेंज लगेगा नहीं. ये अपॉर्चुनिटी लगेगी कि ओके थैंक गॉड, वैसे तो मुझे टाइम मिल नहीं रहा था अपने लिए, अब मिल गया है. ये अपॉर्चुनिटी लगेगी कि लेट्स वर्क ऑन माय दिस हॉबी एंड दिस हॉबी. बट अगेन माइंड को रितेश, फोन तो छोड़ना ही पड़ेगा, बट पीपल विद टुडे, आई एम टॉकिंग एज ए स्पोर्ट्स पर्सन. जैसे ही थोड़ी देर बैठ के चलो फोन में बात करें, ये करें, मतलब ऐसे दे आर रेस्टलेस पीपल बिकॉज खेलते रहते हैं अपने, ये करते रहते हैं. जैसे ही कुछ टाइम मिलता है बैठने के लिए, वी कांट सिट आइडल, including me also, means being in this profession teaching also, either I will write or do something. अपने लिए टाइम, अगर मैं राइट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आई एम नॉट विथ, आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स. बट ये आप कैसे कैसे आप बोलोगे कि मैं अपने, वी डोंट, हम अपने को टाइम देते ही नहीं है, आपने जैसे बोला, बिकॉज हमें डर लगता है अगर टाइम दे देंगे कुछ निकल आएगा, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम. एब्सोल्युटली. ये जो पॉइंट, हाँ यस, आप बोलिए. हाँ, ये जो पॉइंट है ना जो आपने बोला दैट जब हम बैठते हैं वी कांट सिट, राइट? क्या होता है ज्यादातर पास्ट याद आएगा, लोग याद आएंगे या फ्यूचर का वरी होगा, ऐसी थॉट्स चलेंगी ऐसी, राइट? तो अब उस सिचुएशन को हम एस्केप करते रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा. फिर हम नेटफ्लिक्स देखेंगे, फिर हम मूवी पर जाएंगे, फिर हम XYZ एन नंबर ऑफ थिंग्स करेंगे, बट वो पीस नहीं मिल पाएगी जो हम चाहते हैं. और अगर पीस चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि आई एम प्लेइंग फाइनल इन इन अ मैच, मैं चाहता हूं मेरा पूरा ध्यान इस मोमेंट पे हो, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. उसके लिए कुछ महीनों की, कुछ समय की प्रैक्टिस चाहिए सो दैट आई कैन टेल इट टू माय माइंड, just focus on this moment. Don't think about the result, don't think about people, just focus on this. But
हैविंग सेड दैट, शुरू में तो वो अनइजीनेस रहेगी। तो क्या करना है? कुछ नहीं, जस्ट बैठे, पहले तो टारगेट दे, अपने माइंड को टारगेट देना जरूरी है। द पॉइंट इज वी डू नॉट गिव थिंग्स टू आवर माइंड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड आई रियली वांट दैट कि सभी जो सुन रहे हैं वो इस बात को एग्री करें या डिसएग्री करें, प्लीज बताएं जरूर। द बिगेस्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट इन आवर लाइफ, सबसे ज्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट तब फील होती है व्हेन वी से समथिंग टू आवर माइंड, सुनो ऐसे नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं बोलना, एंड माइंड लिसन्स टू इट। वो सुने कि हाँ नहीं करता, तब जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, तब जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, इट्स अनकम्पेरेबल। तो जब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें कि ओके, शुरू में 10 मिनट जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करें। लाइफ इज एक्चुअली नॉट पास्ट, लाइफ इज एक्चुअली नॉट फ्यूचर, इट्स हैपनिंग राइट नाउ। क्या करना है? छोटे छोटे लैप्स लेने हैं, 5 मिनट बस फील करना है प्रेजेंट मोमेंट। अपने आप से बात करनी है कि मेरा पूरा ध्यान प्रेजेंट पे। मैं आप सबसे पूछता हूँ जो भी सुन रहे हैं प्लेयर, वी मे हैव प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, वी मे हैव challenges in our life, but do we have any problem in this moment पे? क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम है इस मोमेंट? गौतम, कुछ प्रॉब्लम है इस मोमेंट? मैं सोच रहा हूँ, आई एम स्टिल थिंकिंग हाँ, दैट यही है कि सोचते रहते हैं कि क्या करना है, मतलब दे डोंट सेंड इट अक्रॉस आप क्या होना है क्या नहीं है ना। कोई लिखा है नो, somebody have written a dream divine, no problem. If everybody is watching, if they can comment, I think it will be better. that will be better. See, प्रॉब्लम प्रेजेंट मोमेंट में कभी भी नहीं हो सकती। प्रॉब्लम कब है? when we are attached to our past, we are carrying the baggage of our past। इतने साल हो गए नहीं हुआ, ये मैंने किया नहीं हुआ, ये मैंने फेलियर था मैं इतने साल पहले, और फ्यूचर पता नहीं आगे क्या होगा, व्हाट इज इन फ्यूचर फॉर मी, बट इन द प्रेजेंट मोमेंट देयर इज नो प्रॉब्लम। So I'm talking, I'm listening. But लोग यस, हमेशा ये करते हैं कि जो जैसे ही बैठते हैं, आपने जैसे बोला जी मेरे लिए वो क्या सोच रहा है, मैं क्या हाँ उस हाँ, प्लेयर को हरा पाऊंगा कि नहीं, वो क्या ट्रेनिंग कर रहा है। जो आई एम थिंकिंग, मैं अपने ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं फोकस कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है, कि वो कोच सोच रहा है कि ये प्लेयर क्या ट्रेनिंग कर रहा होगा, ये मेरे प्लेयर को हराने की कोशिश कर रहा है, सो लेट मी डू। अगर वो फोकस छोड़ के हम अपने पे फोकस करें, एज यू सेड, आई थिंक इट विल बी। और एक दिन ने भी बोला है देयर इज नो प्रॉब्लम, सो गुड, there is no problem. So, Hitesh, I have a lot of questions. I have chopped down few. So let's answer to the first question is how will meditation make somebody too relaxed or spaced out to succeed at his or her field? ओके। The practical use of meditation in our daily life is visualizing your day। अपने दिन को सुबह सुबह विजुअलाइज कर, कोई मीटिंग है, कोई गेम है। MS धोनी इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट। आपने अगर इनके इंटरव्यू सुने हो, लोगों से सुना हो, तो वो फील्ड पर जाते हैं मैच से पहले एंड ही जस्ट विजुअलाइज इट, विजुअलाइज द सिचुएशंस, विजुअलाइज दैट ओके अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँ। तो सेम हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, सिचुएशंस, लोग हमारे हिसाब से नहीं होंगे, हमें क्या करना है, विजुअलाइज करना है इन द मॉर्निंग। लेट्स से प्लेयर प्लेयर का सेमीफाइनल है, अब उसे एंजाइटी हो रही है, उसे डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, ओपोनेंट्स के बारे में सोच रहा है। फाइनल हितेश, फर्स्ट राउंड से ही हमारे प्लेयर्स को, अगर इट्स फॉरगेट अबाउट सेमीफाइनल, जैसे ही मेरा पहला मैच है आई एम गोइंग, वहीं से स्टार्ट हो जाती है
आप मेरे को बेसिक से बता। ओके, तो वही कि मान लीजिए फर्स्ट मैच है, राइट? अपने आप को देखिए, वर्किंग ऑन माइंड इज एन एवरीडे थिंग। वो बहुत भटकने की कोशिश करेगा, आउट ऑफ ट्रैक होगा, उसे वापस लाना, उसे रियलाइज करवानी पड़ेंगी कुछ चीजें। फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ क्यों हूँ? लेट्स से अगर मैं किसी टूर्नामेंट में आ गया हूँ, तो अपने आप को रियलाइज करवाना जरूरी है कि वाई एम आई हियर, क्या है मेरा पर्पस। ना विजुअलाइजिंग योर मैच, विजुअलाइजिंग योर सिचुएशन, ये ओके, क्योंकि विजुअलाइज किया कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, आई एम डूइंग माई बेस्ट, बहुत अच्छे से हो रहा है, एंड आई एम विनिंग इट, बहुत अच्छा से हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग हियर, एनर्जी के लेवल पे बात करें, दैट देयर इज अ वेरी फेमस कोट दैट वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो। हमने अटेंशन क्या दी? हमने एनर्जी पॉजिटिव दी, दैट आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। और जब ये एनर्जी देते रहे, सिचुएशंस बहुत अच्छी हो गई। आई जस्ट गिव यू शॉर्ट एग्जांपल अबाउट इट, बट ये जरूरी है दैट विराट कोहली से किसी ने पूछा था कि आपने सचिन तेंदुलकर से क्या सीखा ड्रेसिंग रूम में। उन्होंने बोला मैंने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन सीखी। दे वर प्लेइंग अ मैच इन इंग्लैंड एंड ही वाज विजुअलाइजिंग अ बॉल, बाउंसर, किसी बॉलर का। ही वाज विजुअलाइजिंग इट कि अगर यहाँ पर बाउंसर आया देन आई विल हिट इट। उन्होंने विजुअलाइज किया और मैच में सही में वो सिचुएशन आ गई। एंड द एग्जैक्ट कोट ऑफ सचिन वाज दैट माइंड न्यू व्हाट टू डू, बॉडी जस्ट फॉलो। वहां पे कंफ्यूजन नहीं था, इट वाज क्लैरिटी कि ऐसे आएगा तो ऐसे ही कर। तो दैट्स हाउ वी कैन विजुअलाइज इट। और फिर क्लैरिटी रहती है, माइंड को हमेशा क्लैरिटी चाहिए होती है कि इस समय पे ये करना है। आई थिंक दिस इज हाउ वी कैन use the practical meditation to help succeed in our field. क्वेश्चन है, मीन्स इट्स बच्चों का भी है। आई हैव जिसके भी पूछो दैट ट्राई एंड डू मेडिटेशन। आप करते हो कि मेडिटेशन से मेरे को क्या फायदा? मेरे पास तो टाइम ही नहीं है मेडिटेशन। मीन्स मेडिटेशन व्हेन शुड द टाइम फाइंड टाइम फॉर द मेडिटेशन? मैं बोला मेरा तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, मेरे को ट्रेनिंग करनी है, मेरे को स्ट्रेचिंग करनी है, मेरे को खाना खाना है, मेरे को सोना है, बट मेडिटेशन आई डोंट नो। सो how can one find time to meditate in the busy schedule? मतलब आप किस तरह से पोर्ट्रेट उनको कर सकते हैं? मेरे जितने व्यूअर्स हैं, हाउ कैन यू टेल देम, एनकरेज देम, आप कैसे अपने बिजी टाइम से टाइम निकाल के आप मेडिटेशन करना है, एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? सी यस, आई एग्री विद यू कि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दैट मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए। मैं सबसे पूछता हूँ जिसका ये क्वेश्चन। और एक चीज है, मेरे पास एम्बियंस नहीं है। क्या मैं नीचे बैठ के कर सकता हूँ कि मेरे को एक पीसफुल रूम चाहिए मेडिटेशन करने के लिए? मतलब इतने सारे बहाना है, आप बोलो ठीक है आप मत करो, बट आई टुडे इन दिस पब्लिक प्लेटफॉर्म आई रियली वांट टू नो कि क्या ये सब जरूरी है? मेरे को सफेद वस्त्र पहनने पड़ेंगे मेडिटेशन करने के लिए? क्या द रूम हैज टू बी एरोमेटिक सो दैट आई डोंट गेट द नेगेटिव थॉट्स? क्या मेरे को नीचे बैठ के मेडिटेशन करना है? You getting my point? So if you can help me with help all of us in this to clear up the myth. यस, तो माय क्वेश्चन टू ऑल द पीपल हु थिंक लाइक दिस, पूरा दिन क्या चलता है यहाँ पे? वी डू नॉट हैव टाइम। मान लीजिए टाइम नहीं है 1 घंटा अलग से मेडिटेशन का, लेट्स से, बट पूरा दिन यहाँ क्या चल रहा है? वी आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग, राइट? मतलब है ड्राइविंग आवर माइंड टू वन थॉट, राइट? सुबह 5 मिनट दें शुरू में, स्टार्टिंग के लिए। गिव योरसेल्फ 5 मिनट्स। लेट्स से आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, उसके आगे बात करेंगे। बट द थिंग इज, लेट्स से आई डिसाइडेड दैट होल डे आई विल फील जस्ट ग्रेटिट्यूड। तो मैंने क्या किया, 5 मिनट सुबह ग्रेटिट्यूड के लिए अलग सोचा, ब्लेसिंग सोची, दैट आई हैव वाटर टू ड्रिंक, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री, आई एम healthy, I am wealthy, my eyes are good, my hands are good,
आई हैव अ गुड कोच, ये सब चीजें हमने ग्रेटिट्यूड फील करते रहे करते रहे करते रहे, आपने माइंड को प्रोग्रामिंग दे दी। अब क्या होगा, चाहे आप वर्कआउट करें, चाहे आप वॉक करें, चाहे आप कुछ भी करें, रीडिंग करें, कुछ भी करें, ये आपने थॉट क्या दिया हुआ है, इसको ग्रेटिट्यूड दिया हुआ। दिस इज व्हाट मेडिटेशन है। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, आपको पीसफुल एनवायरनमेंट जैसे आपने बोला, वो बाद में, वो अलग चीज आ जाती है, बट टू स्टार्ट विद, आप कहीं भी कर सकते हो, इवन वॉक करते हुए भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेडिटेशन ऐसे नहीं करना चाहिए। बट पॉइंट इज माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, जो नेगेटिविटी है उसको हटाना है, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। बिकॉज मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा चेक होती है इन टफ सिचुएशन, राइट? तो अगर मेंटल स्ट्रेंथ पे काम नहीं किया, पीसफुल काम नहीं किया, माइंड को गाइड करना नहीं आता, उसे रोकना नहीं आता, देन देयर इज नो पॉइंट, कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा कुछ करने। तो पहली चीज ये। नाउ सेकंड थिंग कि जब हम ये करना शुरू करते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, बट व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इट, हमें कुछ मिलता है, तब हम करते हैं। लेकिन जब शुरू करेंगे, अपने आप हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, हमारी खुशी बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी, विल स्टार्ट, विल मोर लव मोर द थिंग्स विच वी आर डूइंग। तो अपने आप किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, बट शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने ओल्ड बिलीफ को हटा। हमें कोई शांत रूम नहीं चाहिए, वी कैन वॉक इवन इफ वी सिट। हम दुनिया को देख रहे हैं पर हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है दिट्स कॉन्सेंट्रेटेड ऑन, एज यू सेड, ग्रेटिट्यूड। देयर कैन बी मेनी वेज, बहुत सारे वे हो सकता है थैंकिंग। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई गेम, दैट्स कम्स, जैसे इम्प्रूव माई कम्स, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। Am I correct? Is visualization and meditation are both same or are different? See, visualization comes under meditation. चाहे whatever the thing is, if I'm able to guide my mind for to a few things, if I'm able to detach myself from this situation and guide, I'm able to guide my mind for positive things, it's meditation. It's simple. तो वो उसी में ही आ जाता है, मेडिटेशन में ही आ जाता है। सेल्फ चेकिंग करना, सेल्फ एनालिसिस करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, मैं कहाँ गलत हूँ, क्या ये मैं हूँ, अपने आप को क्वेश्चन करना, ये मैं क्यों सोच रहा हूँ, ये मुझे चेंज करना है। ऑल दीज थिंग्स कम अंडर मेडिटेशन। Watching this and taking this particular point, ये मेरे को सोचना है जे मैं कहाँ गलती किया क्या, that is part of meditation. Meditation is not like sitting and just chanting om or anything. It's ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड चैंटिंग, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट दैट, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। exactly मेडिटेशन इज अबाउट चेंजिंग थॉट प्रोसेस, राइट? do this and find out time. Okay, this is a very funny question. I hope you have been listening to this. So, most of the players have written that they experience restlessness, discomfort while meditating. Means there's something dancing. Means even if I try to sit down, I can't. Means if you think how it is. So, what do you suggest to make that happen? Means how can we focus in that way? अगेन, जो हमने बात की कि मेडिटेशन इज नॉट अबाउट जस्ट सिटिंग एंड हैविंग नो थॉट, जस्ट यू नो ब्रेथ इन ब्रेथ आउट कर रहे हैं या कुछ चैंटिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन इज नॉट दैट। मेडिटेशन का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसे पॉजिटिव थॉट देना होगा, एंड वी हैव टू गो डीप इनटू इट, रियलाइजिंग। बात क्या है कि अगर कोई डिसाइड What? नहीं किया, सॉरी, Positive thought in anything you are doing, any meditation, the key word is positive. If what there's nothing negative in it, you work visualize kar rahe ho, kuch bhi kar rahe ho, the key word is it has to be positive thinking. Correct? Okay, राइट? thank you. सो व्हेन आई, लेट्स से प्रेजेंट में फील किया, लेट्स से आई एम मेडिटेटिंग कि आई एम जस्ट फीलिंग द प्रेजेंट मोमेंट। अब रेस्टलेसनेस कब आती है? माइंड को हमने खाना क्या दिया हुआ है, अभी तक क्या खाना दिया हुआ है? नेगेटिव थॉट्स, गिल्ट, सैडनेस, पास्ट की थिंकिंग, ये सब दिया हुआ है, तो माइंड वहीं जाएगा।
विल टेक टाइम, एकदम से नहीं होगा. दैट्स व्हाई आई सेड कि 5 मिनट. लेट्स से मैंने लेट्स से इवन हम फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो इट्स नॉट दैट कि पहले ही दिन आई विल बी एबल टू पिक अप 20 kg डंबल, राइट. स्लोली स्लोली, बी पेशेंट, बी पेशेंट. 5 मिनट से ही शुरू करना है, कि अपने माइंड को गाइड करना है कि बस 5 मिनट फील कर प्रेजेंट, ज्यादा नहीं. धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहे. अब इससे अगला स्टेप आता है जो ये रेस्टलेसनेस फील हो रही है, दैट कुछ ना कुछ समथिंग इज पुशिंग अस, पुलिंग अस, वो चीज खींच रही है, चाहे वो पास्ट की बात है चाहे वो फ्यूचर है. अब उसे रेशनलाइज करना जरूरी है. एनी नेगेटिव थॉट, उसे पॉजिटिव थॉट से रेशनलाइज करना जरूरी है, उसे क्लोज करना जरूरी है. क्योंकि माइंड वहां जा रहा है, वो कुछ ढूंढ रहा है, वो कुछ आंसर ढूंढ रहा है, तो देना पड़ेगा. अवॉइड नहीं कर, आंसर देंगे, क्लोज द चैप्टर, धीरे धीरे वो प्रेजेंट में आ. Question: how can meditation help in playing proper sport? ओके. वही जो मैंने आपको सचिन का एग्जांपल दिया, सचिन तेंदुलकर का. एंड देयर आर सो मेनी थिंग, क्योंकि इवन हम क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे अंदर बहुत यू नो दैट स्पार्क है, टैलेंट है, सब कुछ है, बट आई एम नॉट एबल टू डील दिस. तो हम नहीं पहुंच पाएंगे. यू नो इट, आपने शायद सुना होगा एस जे टेलर, जो कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में रह चुकी है. शी वॉज नंबर 1 एंड शी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 30. इमेजिन, 30 इज द एज जब स्पोर्ट्स पर्सन अपने पीक पर होते हैं. Yeah. उन्होंने तब रिटायरमेंट ली बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू डील विद हर एंजाइटी. शी वॉज नंबर 1, नंबर 2 इन रैंक. तो सब कुछ कर लिया, वी अचीव एवरीथिंग. हमने फिजिकल लेवल पे, हमने स्किल लेवल पे सब कुछ प्रैक्टिस किया, लेकिन अगर ये प्रैक्टिस नहीं किया तो वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी. वी ऑलवेज नीड अ पीसफुल माइंड, अ काम माइंड टू टेक डिसीजन. ये करना है, ये नहीं करना. अगर मन शांत नहीं होगा, हाउ आर वी गोइंग टू प्ले इन प्रेशर सिचुएशन, परफॉर्मेंस प्रेशर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म. बाहर बहुत से लोग हैं जो, हमारे अंदर डर रहता है कि वो क्या कहेंगे. फियर ऑफ फेलियर इतना नहीं है, फियर ऑफ फेलियर से ज्यादा डर है मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, ज्यादा फियर वो है. Absolutely. तो ये सब डील करने के लिए, अगेन आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, हैव टू क्वेश्चन माई सेल्फ, आई हैव टू मेक माई सेल्फ पीसफुल, सो दैट क्या करना है क्या नहीं करना है वो क्लैरिटी है. और जो करना है उसमें हम एनर्जी लगा सके, बिकॉज इट नीड्स पावर. हमें पता है कुछ चीजें कि हमें ये करनी है, ये नहीं करनी है, क्यों नहीं कर पा रहे, के अंदर पावर ही नहीं. पावर डेवलप कैसे होगी? पॉजिटिव, ग्रेटिट्यूड, प्रेजेंट, ये सब करने से हमारे अंदर की पावर्स बढ़ेगी और वो कर पाएंगे जो कर. Start taking lot of opinions as a sports person and ये हम बहुत सारे opinions ले लेते हैं and then I तो opinion ही हमें fall down करते हैं because I don't know मैं किसका सुनूं. तो अगर आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि how can a sports person, why should a sports person talk to 10 different people taking opinions? क्या उसके भरोसा नहीं है कि what message do you will send to the players that opinions क्या matter करती है performance में? Yeah, I will just say one thing, कि other people's opinion affect us when we are not sure about ourselves. जब हम खुद के बारे में श्योर होते हैं, हमें खुद की कमियां पता है, एक्सेप्ट किया है हमें, हमने अपनी शॉर्ट कमिंग्स को, देन दूसरों की बातें हमें अफेक्ट नहीं करेंगी. हम बाहर अप्रूवल ढूंढेंगे, हम बाहर वैलिडेशन ढूंढेंगे जब हमें खुद का नहीं पता. अगेन, अपने आपको क्वेश्चन करना जरूरी है, बार 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 बार, क्यों कर रहा हूँ, क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ, उसको
उसको करेक्ट करना धीरे धीरे जरूरी है, अपने आप को एक्सेप्ट करना जरूरी है। शॉर्ट कमिंग सब में है, मुझ में भी है, बट आई ओन इट, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, भागता नहीं हूँ उससे, उस पर वर्क करना शुरू करना। बट जो एक्सेप्टेंस है, वो जो प्यार है, वो आपको एक हीलिंग एनर्जी देगा उसको चेंज करने के। दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे कि नहीं ये कमी है, ये कमी है, मैं इट इज खेल नहीं नेवर। पाया। मैं खेल नहीं पाया, या मैं हार गया। मैं इससे खेलूंगा तो हार जाऊंगा, ये ट्रेनिंग आज सही नहीं हो रहा है, तो तुझे बोले नहीं ये ट्रेनिंग तूने गलत किया है, ये करना चाहिए, तो कोच वो प्लेयर बोल रहा है ये गलत है। सो ओपिनियन जैसे है तो माइंड ऑटोमेटिक 10 डायरेक्शन में चले जाते हैं, देन वी मिस आउट द ओन गोल्स। एब्सोल्युटली। देखिए, लाइफ में फुटबॉल से भी ज्यादा खेले जाने वाली ये एक गेम है जिसे बोलते हैं ब्लेम गेम। तो जब तक ब्लेम करते रहेंगे तब तक हम अचीव नहीं कर सकते। wherever we are, whatever we are doing, whatever we have got, I have to accept it. एक पौधा कंप्लेन नहीं करता है कि मुझे कहाँ प्लांट कर दिया गया है, वो एक थोड़ी सी मिट्टी में भी ग्रो कर जाता है, राइट? सो ग्रो wherever we have been planted. उससे आगे बढ़ने के लिए आई हैव टू एक्सेप्ट इट। ये भी बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि मेरे पेरेंट्स अगर अच्छे होते, मैं बड़े शहर में होता तो अच्छा होता, ऐसी होती कोचिंग, वैसी होती, मैं इंडिया से बाहर होता तो ऐसा होता। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हर अगर चीज कहीं भी मेरे एक्सेप्ट। को मिट्टी मिली और आई कैन ग्रो, लाइक ऐसे बरगद और पीपल, दे आर नेवर प्लांटेड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बट दे आर ह्यूज, they make their own space. I think all our players need to understand this. Wherever we are training, we have got the best opportunity. You should grow, except complaining में अगर कहीं भी होता, it can be any place in this country. Don't want to mention any names. वहां होता तो अच्छी ट्रेनिंग होती, आप जहां हो वहीं पे रहो एंड वहीं पे ट्रेनिंग आप करो। सुपर। ग्रो wherever you have been planted। जब ये चीजें कर लेंगे तब देखना वो एनर्जी अंदर से आएगी। यस, आई कैन डू इट। Question most of our players have written this: pre-match anxiety, how can I tackle during the game? Means pressure situation inside the squash court. I have already got into the arena, मतलब मरीना जाने वाला हूँ मैच से पहले, जैसे वी स्टार्टेड डिस्कस्ड, एक तो कोर्ट के अंदर घुस गया और कोर्ट से पहले दिस प्री मैच एंजाइटी इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। प्लेयर ट्रेन्स लाइक हेल, पर जैसे मैच का टाइम आता है they fail inside the court. How can you help us? How can this meditation help us? This pre-match. This is the common question asked all over. मेरे पास बहुत सारे questions आए pre-match anxiety के बारे में. If you can please help all up. यस, यस। सी, एंजाइटी तब होती है when we are attached or when we are looking more on the result rather than the process, right? तो पहली चीज, आई हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस। क्या मैं इंजॉय कर रहा हूँ खेलते हुए? मैं ये सब कुछ कर किस लिए रहा हूँ? एम आई enjoying it or not? एम आई enjoying the day or not? जो आज का दिन है, एम आई seizing it? कार्pe diem, seize the day। आज मुझे अच्छा करना है। मान लीजिए कोई भी ओपोनेंट है, कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, अल्टीमेटली आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लव डूइंग। पर वो याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को, ऐसे नहीं होगा। आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ। मान लीजिए जब मैं शुरू शुरू में, पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर रहता है, सब में रहता है, राइट? तो मेरे में भी था शुरू। तो आई जस्ट यूज टू रिमाइंड माई सेल्फ, जब एंजाइटी शुरू में, अब तो नहीं होती, शुरू में जब होती थी, दैट आई हैव टू एंजॉय दिस, ये मुझे करना अच्छा लगता है। बस जब ये फोकस कर लेते हैं, देन वी आर डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। जब जितना डिटैच होते हैं रिजल्ट से, उतना हम अपने आप को 100% दे सकते हैं जो भी हम चीज कर रहे हैं। इसलिए आई फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द आउटकम। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आई एम माई सेल्फ, माई फोकस इज ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। एंड
आई नो वेयर आई, जब ये इस बात में वजन तब आएगा जब वी रियली नो आवर सेल्फ, वी रियली स्टार्ट टू नो आवर सेल्फ। आई नो माई सेल्फ कि मेरे में ये कमी है, यहाँ मुझे इम्प्रूव होना है। दूसरों की ओपिनियन डज नॉट अफेक्ट। तो जब हम ये सब फियर हटा देंगे तो विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। जब एंजॉय करेंगे तो इट्स क्वाइट नेचुरल, जिस चीज में हमें, जिस चीज से हमें प्यार है, मजा आता है, उसमें तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो थोड़ा सा लेट मिले, बट वो रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। Players go, all my players, that whenever you go to play a match, result should not be the target. The performance and how I enjoy the process वो मैटर करती है, बिकॉज हम इसलिए हार जाते हैं बिकॉज हमें ये मैच जीतना रहता है, हमें ये मैच खेलना नहीं रहता है। हाँ, तो आप हितेश ये बोलेंगे कि हम मैच खेलें, रिजल्ट अपने आप विल कम। इज दैट करेक्ट? इज दैट, इफ आई कैन पुट इट इन दिस वे? yes, and at last it's just a match. I have to enjoy it. Don't forget to enjoy it. हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना। आई ऑलवेज से दिस टू पीपल, जो भी कहीं भी कुछ भी करने जाते हैं, आई ऑलवेज अपने स्टेट के लिए खेल रहा हूँ। कि आई डोंट गिव माय 100%। प्लेयर्स से मैं अपने कंट्री के लिए खेल रहा हूँ, मैं अपने स्टेट के लिए, कि मैं अपने स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए खेल रहा हूँ। तो मेरे को अगर मैं हार गया, ये हार गया, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो कंट्री और ये सब उनके वजह से देन परफॉर्मेंस ड्रॉप्स? व्हाट एडवाइस विल यू गिव? अगेन इट्स जस्ट अ मैच। दो लोग हैं तो एक तो हारेगा ही, एक तो जीतेगा ही, क्वाइट नेचुरल, राइट? तो कभी कभी हारेंगे, कभी कभी जीतेंगे, ये तो होगा ही। अगर इस चीज से डील नहीं किया है तो वी आर इन द रॉन्ग फील्ड, राइट? बिकॉज अगर मैच है तो कभी ना कभी तो हार। तो आई हैव टू एक्सेप्ट इट फर्स्ट, कि इट्स ओके, इवन इफ आई लूज, इट्स ओके। तो मुझे एंजॉय करना है, मुझे बेस्ट करना है, बट रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। आई कैन लर्न फ्रॉम इट, आई कैन इम्प्रोवाइज, दैट्स ओके। मैं अपना बेस्ट क्या दे सकता हूँ वो देना है, रेस्ट आई लीव इट टू गॉड। मुझे ध्यान ही नहीं देना है आउटकम पे, देखना ही नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुझे रिजल्ट देखना ही नहीं, ना एप्रिसिएशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस अपने आप से क्वेश्चन करना है, एम आई एंजॉइंग इट टुडे और क्वेश्चन मीन्स दो चार लोगों ने लिखा, एंड आई थॉट दैट आई शुड इंक्लूड दिस। आर योगा एंड मेडिटेशन रिलेटेड टू ईच अदर? आर दे कम इन द सेम फैमिली ग्रुप? बोले मैं तो योगा इसका कर रहा हूँ, मेडिटेशन की मेरे को क्या दरकार है? सो नाउ आर दे नहीं, रिलेटेड? नो, इन दैट सेंस इट्स नॉट रिलेटेड, इट्स नॉट रिलेटेड बिकॉज थोड़ा सा ग्लैमराइज कर दिया गया, आई वुड से, योगा को, कि चलो ऐसा करना है, ऐसा करना है। बट अल्टीमेटली आप हेल्दी हो गए, बट अगर यहाँ जो चल रहा है उसको सही नहीं किया ना, यू विल नॉट, यू आर नॉट कंसिडर्ड एज हेल्दी। सो मेडिटेशन में बात करूं तो आई वुड से मोर फोकस on keeping your mind on track, on good things, important things, and distraction से बचा कर रखता है आपको मेडिटेशन। आई ऑलवेज से टू, नॉर्मली मैं सबको ये बोलता हूँ कि मेडिटेशन इज अ नेट प्रैक्टिस। जो लाइफ में सिचुएशंस आने वाली हैं, मेडिटेशन इज अ नेट प्रैक्टिस। आप पहले ही विजुअलाइज कर लो, आप पहले ही रेडी कर लो अपने आप को, सिचुएशंस आने वाली हैं, रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है, बट आई लव इट, आई एंजॉय इट। तो बस यही है, मेडिटेशन एंड योगा दोनों अलग चीजें हैं, दोनों जरूरी हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग, ये जब शांत होगा तो सब कुछ हो जाएगा। एज पर इतेश, ये मान के चले जो मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू एवरीथिंग, बिकॉज अगर ये शांत रहेगा और कि ये अगर ट्रेन होगा, देन वी कैन ट्रेन एवरीथिंग एंड कॉन्कर एनी मैच। इज दैट करेक्ट, इफ आई कैन पोर्ट्रेट इन दिस वे?
नहीं, इट्स नॉट a guarantee that we can conquer any match, क्योंकि कुछ हमारे प्राइवेट अटैक्स भी होते हैं, बट यस, जितना मेडिटेशन होगा उतना आई विल बी एबल टू डू थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। मान लीजिए ईटिंग हैबिट्स भी हैं, मान लीजिए डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं फोकस कर पाऊंगा अपने एम पे क्लियर, इफ माई माइंड इज पीसफुल। अगर मैंने अपने मन को शांत किया तो जैसा एम होगा, कहते हैं जैसा एम होता है वैसे हमारे एक्शंस अपने आप डेवलप होते हैं। meditation helps us to keep our eye on the focus on the aim, बाकी सब distraction हट जाती Specific to our game. When someone is losing a match, his confidence is always going down. What would be the key for him or her at that point of time inside the court? Means ये तो एक प्री मैच हो गया, we are outside. Now कोर्ट में खेल रहे हैं, means I'm down. So क्या strategy होनी चाहिए उस time? Because game चल रही है and what do you suggest as part of this mind? है। Again, as I said that if I'm lacking behind, अगर कुछ लग रहा है कि पहली बात तो ये कि इट्स ओके, अगेन कि पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लाइफ, पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ गेम, कि अगर सचिन तेंदुलकर भी रोज 100 नहीं बना सकते, उनकी भी खराब फॉर्म आती है, वो भी जीरो पे आउट होते हैं। हर बड़ा प्लेयर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है, बट इट्स ओके, कोई बात। अभी क्या कर सकते, व्हाट कैन आई डू राइट, क्या वो मेरे कंट्रोल में है? जो चीज हो रही है मेरे कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल में क्या नहीं। स्ट्रेस 90% हम तब लेते हैं थिंग्स विच आई कैन नॉट कंट्रोल। तो फोकस हटा के व्हाट कैन आई कंट्रोल, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नया आइडिया यूज कर सकता हूँ जो आज तक मैं डर रहा था यूज करने में। आई कैन बी मोर बोल्ड, आई कैन ट्राई न्यू थिंग्स, ताकि अगले मैच में मुझे हेल्प मिले इस चीज की, लर्निंग। तो आई कैन डू दैट, राइट? तो आई थिंक ये कर। स्ट्रेस अब वो अंदर ही सोच चालू हो जाती है कि रोना चालू हो जाता है कि अब मैं निकलूंगा, ये क्या होने वाला है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि फियर है, फियर ऑफ एग्जैक्टली। क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ व्हाट पीपल आर गोइंग टू से। तो देखो, चलिए एक स्टोरी मैं शॉर्ट बता देता हूँ, एंड आई होप ये स्टोरी आप अपने साथ रखें हमेशा। एक बार एक फादर एंड सन, वो एक रेगिस्तान को, डेजर्ट को क्रॉस कर रहे होते हैं, और दोनों ऊपर बैठे होते हैं ऊंट के, राइट? तो वो किसी गांव को क्रॉस करते हैं, तो गांव के वो चार लोग, जो फेमस चार लोग हैं ना, वो चार लोग उन्हें बोलते हैं, सोचते हैं आपस में, कैसे फादर एंड सन है कि दोनों ही ऊंट पर बैठे हैं, ऊंट को बिल्कुल ही बोझ बन दिया हुआ है। तो दोनों सोचते हैं कि ये तो गलत है, ये तो गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। तो क्या करते हैं, सन, बेटा नीचे उतर जाता है और पिता ऊपर जाते हैं। अगले गांव में पहुंचते हैं तो वहां वही चार लोग मिलते हैं, और वो कहते हैं कि कैसा पिता है, बेटा बेचारा पैदल चल रहा है एंड खुद ऊपर बैठे हैं। तो फिर फादर को भी बुरा लगता है, वो सोचता है यार ये तो गलत। फिर वो अल्टरनेट स्विच कर लेते हैं। अगले गांव में जाते हैं तो वो चार लोग मिलते हैं, कहते हैं कैसा बेटा है, बाप पैदल चल रहे और खुद ऊपर बैठे। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, दोनों ही उतर जाते हैं और पैदल चलने लगते हैं। अगले गांव में जाते हैं, वही चार लोग बोलते हैं कैसे पागल है बाप और बेटा, ऊंट मिला है फिर भी पैदल चल रहे हैं। So the point is that people are always going to criticize us no matter what. It's all about what goes inside. अगेन खुद के बारे में श्योर हो जाएंगे, दूसरों के ओपिनियन अफेक्ट करना बंद करती, राइट? और all across this country people are listening to it, stop listening
फोकस करो कैसे आपको क्या ट्रेनिंग करनी है, क्या आपके कोच बोल रहे हैं, पेरेंट्स आपके वेल विशर्स बोल रहे हैं, नेगेटिविटी से दूर रहो. Okay. Last not least, many things. So, how can meditation enhance a life of a sports person? I'm sure that everybody meditation say, but particularly this subject is only for the sports person. How can meditation enhance the life of a sports person? Can you give us your golden tip for all the athletes who are listening to us right now? Okay. See, my personal experience is this. Whatever we are doing, right? I don't play sports, but I do. I have done things bold enough that I can say that uh, when we do meditation, we inside our inside child, बच्चा होता है अंदर का, वो grow करता है, वो flourish करता है. तो when the kid in us is flourishing, उसमें डर नहीं रहता, उसमें एक enthusiasm रहता है. Okay, I want to do some. आज मुझे कुछ अलग कर, आज एक्स्ट्रा कर, आज इंस्पायर करना, आज कुछ ऐसा करना है that पुराने से अपने को हटाकर एक रीब्रांड करना है. So there are so many things which meditation can give us, because meditation gives us the purity of thoughts, purity of mind. और जब मन की हार्ड डिस्क में हम ये कचरा निकालना बंद करते हैं, तो नए आइडियाज आते हैं, नई चीजें डेवलप होती है, एक बोल्डनेस आती है, एक ब्रेवरी आती है. एंड यू नो दैट कि एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो नेक, वो इंट्यूटिव बिहेवियर होना कि कब क्या करना है, वो पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखना. ओके, इस सिचुएशन में ना ऐसे करना चाहिए, वैसे करना है, वो कितना जरूरी. तो first thing this, and second thing, again, when we start questioning ourselves to meditation, correcting our belief, तो हमें समझ आ जाता है हम कर क्यों रहे हैं, क्या मुझे यही करना है या कुछ और करना. अगर यही करना है तो फिर उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं, क्या क्या मेजर्स लेने हैं, तो उससे हम आगे बढ़ते रहे. इसलिए वही बात है कि my golden tip would be that do not get affected by do not get influenced by appreciation. Criticism will never affect you. बस देखना नहीं है मुझे. लाइक अ हॉर्स, आपने घोड़े को देखा है, ब्लाइंडर्स लगा कर रखते हैं उसकी आंखों पे. लाइक अ हॉर्स आई पुट माई ब्लाइंडर्स, जस्ट फोकस ऑन मी एंड माई गेम. रिजल्ट को देखना ही नहीं, कैच हो जाना है, जस्ट करना. उसको करना, थोड़े दिन प्रैक्टिस करें, अपने आप देखते जो रिजल्ट है वो आने लग जाएगा. और when we start guiding our mind, जब वो सुनने लगता है, when it starts listening, then magic begins. फिर हम उसे ये कहते हैं, सुनो ये नहीं खाना, this is not good for your health, वो खाना बंद कर देता है, उसका इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है. when we say to our mind कि नेगेटिव वेस्ट बातों में नहीं जाना है, तो कितना टाइम, कितनी एनर्जी हमारी बच जाती है, एंड वी कैन यूज दैट एनर्जी सो मच. So it helps a lot in all kind of sense. It helps a lot. Super. That's absolutely fabulous. And एक ही चीज है, we all heard that this is a very powerful thing. And start, मतलब the best thing we learned is we don't need any space or any ambience to meditate our mind. You can sit 10,000 people and still think. The main thing which we take from you, Hitesh, is the positivity from whatever it comes, gratitude, which most of our people don't feel like giving, gratitude of what we have, what we don't have. I think from today onwards, think positive, even if you're with a lot of people, feel that gratitude that today we are alive and doing. Sports will come along. Don't think about results. Just perform. Results will come together. Am I right, Hitesh? Anything before we finish this fabulous session? Anything you want to add up? How was the experience with interacting with the sports person with this question? Thank you. Yes, it was really nice
discussion, and I'm very grateful that I could say few things to them, and the things which helped me in my own game, which I am doing. So I'm sure it is going to help them also, because situations तो मतलब सबकी लाइफ में सेम ही आती है, तो डील करना पड़ता है. एंड अगेन खुद का ध्यान खुद पे, फोकस जस्ट ऑन सेल्फ, कुछ नहीं देखना है, बिकॉज हम बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं आसपास लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं. जस्ट फोकस ऑन सेल्फ, अपनी ट्रैकिंग, अपनी चेकिंग, अपनी जर्नी, बस, और कुछ भी. फियर ऑफ क्रिटिसिज्म जो है ना, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ गेम. हारना इज अ पार्ट ऑफ गेम. इट्स नॉट दैट बिग थिंग जो हम सोचते हैं. इट्स ओके, कोई बात, आगे बढ़ते. तो ऐसे अभी के लिए इतना काफी है. It was really very awesome to have you on this platform on the GD Squash, and thank you on behalf of me and my full team who made this little more successful. I hope all my players who are listening gain things from this expert, and GD Squash will bring up more talks with expert in coming weeks. Stay tuned and have a great night. Thank you so much, Hitesh, and thank you guys all for listening to us. Thank you so much. थैंक यू Om सो Shanti. मच. Yeah, thank you so much.